بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا فقہیات کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اسے ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ کی کتاب نعمت المنان سے پڑھ رہے ہیں۔ کمپنی سے کمیشن پر مال لے کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کمپنی سے مال کی قیمت اور اس کے بیچنے پر کمیشن کی فیصد طے کر کے مال لینا اور بیچنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لا باس ان يقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ کپڑا بیچو اور جو اتنے سے زیادہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اور ابن سیرین کا کہنا ہے اذا قال بئه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بینی و بینک فلا باس به۔ جب یہ کہے کہ اس کو اتنے میں بیچو، جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہوگا یا میرا اور تمہارا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 451۔ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کمپنی یا دکان سے بلا قیمت دیے مال لے کر مقرر و متعین کمیشن پر اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنے نام سے ایکسپورٹ کا لائسنس بنوا کر دوسرے کو معاوضہ پر دینا، ایکسپورٹ کرنا میرا کاروبار نہیں ہے، یہ سائل کا سوال ہے، اور میں اپنے مال کو ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں ایکسپورٹ لائسنس بنا کر یہ لائسنس دوسرے کو معاوضے کے لیے دیتا ہوں، یہ درست ہے یا نہیں؟ آج کل یہ کاروبار بن گیا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں آپ جب کسی چیز کے ایکسپورٹ کے لیے لائسنس بنواتے ہیں تو دیکھیے، اگر آپ نے کسی خاص چیز کے لیے لائسنس اس طرح بنوائی ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے، جبکہ آپ خود یہ کاروبار نہیں کرتے ہیں اور نہ اس مال کے ایکسپورٹ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو جب آپ کو اس کی استطاعت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے لائسنس بنواتے وقت غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس طرح ابتداءً اور اصل سے یہ معاملہ غلط ہو گیا، اور جب اصل سے ہی غلط ہے تو آگے بھی معاملہ غلط ہوگا۔ لین دین میں نقلی نوٹوں کے استعمال کا حکم۔ یہاں سائل سوال کرتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، کبھی کبھار دوسرے بیوپاریوں سے جو روپیوں کی گڈیاں ملتی ہیں ان سے ایک دو جعلی نوٹ رہتے ہیں، تو کیا جس طرح ان لوگوں نے نوٹوں کی گڈی میں رکھ کر ان جعلی نوٹوں کو چلا دیا ہے، میں بھی کسی گڈی میں رکھ کر انہیں چلا دوں یا کیا کروں؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جب کسی سے روپے لیں تو انہیں اچھی طرح دیکھ کر اور گن کر لیں، اسی میں عافیت ہے، ورنہ کبھی گڈی میں ایک دو نوٹ کم ملیں گے، کبھی کوئی نوٹ نقلی نوٹ نکلے گا اور بعد میں اس کو واپس کرنے میں آپ کو پریشانی ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو جس شخص سے آپ نے وہ نوٹ لیے ہیں اسی کو واپس کریں اور کسی اور کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ دھوکہ دہی سے ممانعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔
صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ مدرسہ یا مسجد کو مکان کرائے پر دینے کے بعد مکان خالی ہونے پر مالک اس میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ عارضی طور پر ایک کمرہ یا گھر دے دیا گیا، اس میں بچے پڑھتے تھے یا لوگ نماز پڑھتے تھے، اب اس کے بعد میں مسجد بن گئی یا مدرسہ بن گیا یا اسے واپس لے لیا، تو ایسی صورت میں اب اس مکان کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں عارضی طور پر کسی مکان کو مدرسہ چلانے یا نماز پڑھنے کے لیے کرایہ پر یا بلا عوض دے دینے سے وہ مکان مسجد اور مدرسہ کے لیے وقف نہیں ہو جاتا، اور خالی ہو جانے کے بعد مالک مکان اس میں رہ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی رہنے کے لیے کرایہ پر دے سکتا ہے۔ ہجرت سے قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مگر اس کی وجہ سے حضرت ارقم کا گھر وقف شدہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت انس کے بارے میں مروی ہے کہ وہ بصرہ میں جمعہ کی نماز ابو نافع کے گھر میں جو مسجد کی داہنی جانب تھا ایک ایسے کمرے میں پڑھا کرتے تھے جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ حضرت انس اس میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226۔ نہ اس سے ابو نافع کا اس گھر میں رہنا حرام ہوا۔ دراصل کوئی جگہ مسجد یا مدرسہ کے لیے اسی وقت وقف ہوتی ہے جب اس کا مالک اس کے اصل کو اس طرح وقف کر دے کہ اسے نہ بیچا جائے گا، نہ کسی کو ہبہ کیا جائے گا، نہ اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، بلکہ جس کام کے لیے وقف ہے اسی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور اگر اس سے آمدنی ہو تو اس کو اسی مد میں خرچ کیا جائے گا جس کے لیے وقف ہے۔ قال ابن قدامہ معنی ہو تحبیس الاصل و تسبیل الثمرہ، المغنی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3۔ اور یہاں کرایہ پر اپنے مکان کو مدرسہ چلانے یا نماز پڑھنے کے لیے دینے والے نے نہ اصل کو اس طرح وقف کیا ہے اور نہ اس کی آمدنی کو، کیونکہ وہ اصل کا بھی مالک ہے اور کرایہ بھی وہی لے رہا ہے۔ اس واسطے یہ مکان کرایہ پر دینے کی وجہ سے مسجد یا مدرسہ کے لیے وقف نہیں ہوگا، اور خالی ہونے کے بعد وہ اس میں رہ سکتا ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس مکان میں قرآن و حدیث کا درس ہونے یا نماز پڑھنے سے وہ ایسا مقدس نہیں ہو جائے گا کہ بعد میں اس میں فیملی کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج ہو اور کوئی قباحت ہو۔ مسلمانوں کے تقریباً ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا احادیث میں حکم بھی ہے، مگر اس کی وجہ سے وہ مسجد کی طرح مقدس نہیں ہو جاتا کہ اس میں فیملی کے ساتھ رہنا ممنوع ہو یا اس کو کرایہ پر نہ دیا جا سکے۔ سائل سوال کرتا ہے، میں پونا شہر میں رہتا ہوں اور ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے ایک گھر رہنے کے لیے لینا ہے۔ بعض سہولتوں کے اعتبار سے ایک ایسے محلہ میں جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے یا تقریباً وہی لوگ ہیں، اگر میں گھر خریدوں تو آپ کی اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر سے کیا رائے ہے؟ اس کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ایک ایسا محلہ جس کی اکثریت غیر مسلموں کی ہے یا ٹوٹل وہی لوگ ہیں، آپ کو گھر خریدنے کا مشورہ میں قطعاً نہیں دے سکتا، کیونکہ حدیث میں بھی اس کی ممانعت ہے، نیز اس سے آپ کے بچوں کے بگڑنے اور غیر اسلامی رنگ میں رنگ جانے کا خطرہ ہے۔
क्योंकि आपका बच्चे लाजमी तौर से जब बाहर निकलेंगे, बल्कि आपके बच्चे जब लाजमी तौर से बाहर निकलेंगे तो गैर मुस्लिम बच्चों के साथ उनका उठना बैठना और खेलना कूदना वगैरह होगा। तो ऐसी सूरत में वो उनसे उनकी जुबान, तहजीब, अकीदा और रस्म व रिवाज वगैरह सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें उनके दिलो दिमाग में रासिख हो जाएंगी। एक मुसलमान को खुद अपने और अपने बाल बच्चों के लिए अच्छे दोस्तों, साथियों और हमनशीनों का इंतखाब करना इंतहाई ज़रूरी है, जो इस सूरत में हासिल नहीं होगा। न वहाँ उलमाए किराम व अस्हाबे ज़ुहद व तक़वा की मजलिसें होंगी। इस तरह आप नमाज बाजमात और उलमा के दर्स व मजालिस, दुरूस व मजालिस वगैरह से महरूम रहेंगे, जो बहुत बड़ी महरूमी है। नीज़ ऐसे महल्लों में रहने से कुर्बानी वगैरह के मौका पर भी परेशानी होती है और फ़िरका वाराना फसादात के मौका पर जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत का मसला बहुत नाजुक शक्ल अख्तियार कर लेता है। और कितने मुसलमानों को इस किस्म के महल्लों में रहने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घर बार और दुकानों कारोबार का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। कितने लोगों की ख़वातीन की इज्जतें लूट ली गईं। इसलिए आप ऐसे महल्ला में जिसमें किताब व सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हों और मस्जिद व मदरसा की सहूलत हो, घर खरीदिए या प्लाट लेकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर बनवाइए और वही सुकूनत अख्तियार करें। भले ही गैर मुस्लिम महल्लों की बनिस्बत यहाँ दुनियावी सहूलतें कुछ कम हो या ऑफिस वगैरह जाने आने में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त और पैसा लगाना पड़े, क्योंकि इनके मुकाबला में दीनी मसाले व फ़वाइद और अपनी जान व माल नीज़ इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत का मसला ज़्यादा अहम और मुक़द्दम है। यहाँ पर साइल सवाल करता है, क्या कोई चीज़ किस्तों पर खरीदना बेचना जायज़ है? इसके बारे में कहते हैं, किस्तों पर खरीदो फरोख्त जायज़ है जब पहले से फरोख्त की जाने वाली चीज़ की कीमत, किस्तों की तादाद और हर किस्त पर अदा की जाने वाली रकम और वक्त की तायीन कर ली जाए। और अगर कोई किस्त वक्त पर अदा ना कर सके तो बतौर जुर्माना और लेट फीस के नाम पर कुछ ज़ायद रकम वसूल ना करे। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक सहीहैन में वारिद है कि इन्होंने अपने आप को अपने मालिक से 9 उकिया चांदी में इस शर्त पर खरीदा कि हर साल वो 1 उकिया अदा करेंगी। सही बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 336। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बै के बारे में मालूम हुआ, मगर आपने इससे मना नहीं किया, बल्कि खामोश रहे, जो इसकी तकरीर और जवाज़ की दलील है, क्योंकि गलत और नाजायज़ अमल पर आपके लिए खामोश रखना जायज़ नहीं। किस्तों पर दाम बढ़ाकर सामान फरोख्त करने का हुक्म। यहाँ पर साइल कहता है, एक शख्स मुख्तलिफ सामान मसलन पंखा, घड़ी, कूलर और साइकिल वगैरह किस्तवार फरोख्त करता है। मसलन जो साइकिल बाजार में 1200 रुपये में मिलती है, वो शख्स इस साइकिल को 1400 रुपये में बेचता है और रुपए की अदायगी का ये तरीका है कि वो 500 रुपये अव्वले वक्त ले लेता है, इसके बाद 50 रुपये हफ्तावार भरना पड़ता है। तो क्या ये तरीका शरई एतबार से दुरुस्त है? क्या हम 200 रुपये ज़ायद देकर उससे साइकिल खरीद सकते हैं? इसके बारे में कहते हैं, अगर बाए पहले से बता दे कि इस साइकिल की कीमत 1400 रुपये है और इसमें से
500 रुपए पहली किस्त में जमा करना पड़ेंगे। इसके बाद 50 रुपए या 100 रुपए हर माह या हर हफ्ता जमा करने होंगे और इसी पर फरीकैन मुत्तफिक हो जाते हैं और बात तय कर लेते हैं तो बैउ शिरा का ये तरीका दुरुस्त है और जायज़ है, इसमें कोई कबाहत या हुर्मत नहीं है। इस वास्ते कि उधार सामान का बेचना जायज़ है और यहाँ उसने उधार बेचा है और उसकी कीमत पहले से मुकर्रर कर दी है और इसके अदा करने का तरीका भी तय कर दिया है। रहा उधार की सूरत में कीमत में इजाफा का मसला, तो आप नकद बेचने की सूरत में भी देखते हैं कि ताजिर हजरात मुख्तलिफ खरीदारों से कमो बेश कीमत पर सामान बेचते रहते हैं। एक ताजिर एक सामान या एक चीज नकद बेचता है और एक खरीदार को 50 रुपए में देता है, फिर दूसरा ग्राहक आता है तो वही सामान उसको 55 रुपए में देता है और तीसरे को 60 में। तो जैसे नकद बेचने में कमी व बेशी कर सकते हैं, उधार बेचने में भी कमी बेशी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि पहले से ही तय होना चाहिए कि ये बै उधार है और इस सामान की कीमत इतनी है। ये ना हो कि बेचने वाला कहे कि नकद लोगे तो ये सामान 1200 में देंगे और उधार लोगे तो 1400 में, और इसकी अदायगी की ये शक्ल होगी और ख़रीदार उस वक्त कुछ ना तय करे और सामान लेकर चला जाए। ये शक्ल जायज़ नहीं है, इसलिए कि इसके बाद अगर वो 1200 देने के लिए जाएगा तो मुमकिन है कि ताजिर कहे कि हमने तो आपको उधार समझ कर दिया है और हमने अपने रजिस्टर में इसी हिसाब से इंदराज कर लिया है, और ख़रीदार कहे कि नहीं हमने तो नकद समझ कर लिया है, आप ये रोपी लीजिए और हिसाब साफ। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो। इस वास्ते पहले ही से तमाम बातें वाज़ेह होनी चाहिए कि नकद लिया है या उधार और दोनों सूरतों में उसकी कीमत क्या है और उधार की शक्ल में कब तक और किस तरह कीमत अदा करनी है, ताकि बाद में कोई नेज़ा और इख्तिलाफ इसकी बिना पर न पैदा हो। किस्तों पर बैउ शिरा के जवाज़ के लिए ये भी शर्त है कि अगर किसी किस्त की अदायगी में कुछ ताख़ीर हो जाए तो उसकी बिना पर लेट फीस ना ले, क्योंकि ये लेट फीस सूद है जो जायज़ नहीं। अलबत्ता डर हो कि ये वक्त पर अदा नहीं करेगा और हमें फंसाएगा तो उससे बतौर रहन कोई चीज़ ले सकता है। जैसे वक्त पर किस्तें अदा न करने की सूरत में फरोख्त करके उसकी कीमत में से अपनी बाकी किस्तों की रकम ले सकता है, मगर रहन लेते वक्त उसकी सराहत कर देनी चाहिए। एक आदमी ने अपनी दूध देने वाली भैंस को बेच डाला और खरीदने वाले से कहा कि जब तक मैं दूसरी भैंस ना लाऊं तुम 1 किलो दूध रोजाना फ्री हमको दोगे। लेने वाला शख्स देने पर राजी हो गया है, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? कहते हैं ऐसा करना जायज नहीं है, क्योंकि इसमें उसे 1 किलो दूध रोजाना फ्री देने की मुद्दत की कतई तायीन नहीं है, इसलिए कि पता नहीं कि ये शख्स कब तक दूसरी भैंस खरीद कर लाएगा। इस वास्ते मशरूत मुद्दत और बित्ताली इस भैंस की कीमत मजहूल हो गई और इस जहालत की बिना पर यह बहस सही नहीं और उससे दूध नहीं ले सकते हैं। खुंसा जानवर के बैउ शिरा का हुक्म। साइल पूछता है कि जानवरों में खुंसा का क्या हुक्म है? क्या इसकी खरीदो फरोख्त जायज है और क्या उसे घर में रखने से नहुसत आती है और क्या उसे ज़बह करके उसका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसकी कुर्बानी जायज है?
जवाब में कहते हैं अगर कोई जानवर खुंसा हो, मुखन्नस हो, तो मेरे इल्म के मुताबिक इसकी खरीदो फरोख्त या ज़बह करने के बाद उसके गोश्त खाने की किताब सुन्नत में कोई ममानियत वारिद नहीं है और न ही इसको कहीं पर मनहूस कहा गया है और असल अशिया में इबाहत है। इस वास्ते शरअन ये उमूर हराम नहीं है। अलबत्ता किसी को फितरी तौर से कुछ कराहत महसूस हो जिसकी वजह से वो न खाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन इसको हराम कहना दुरुस्त नहीं मालूम होता। रहा इसकी कुर्बानी का मसला, तो चूंकि इससे तकर्रुब इलाही और अजर सवाब की नीयत होती है, इस वास्ते इसके लिए अच्छे से अच्छा और ऐब से पाक जानवर को मुंतखब किया जाता है और खुंसा होना एक ऐब है। इस वास्ते ऐसे जानवर की कुर्बानी से एहतिराज औला और अफजल है, मगर हराम होने की चूंकि कोई दलील नहीं है और खुंसा और खसी जानवर की कुर्बानी भी जायज है। इस वास्ते अगर कुर्बानी से माने दूसरे उयूब ना हो तो इसकी गुंजाइश और जवाज मालूम होता है। यहाँ पर साइल पूछता है कि बाज़ ताजिरों के यहाँ एक चीज की कीमत दो शक्लों में मुख्तलिफ होती है, नकद की कीमत उधार से कम होती है, क्या ऐसा करना जायज और दुरुस्त है? इसके जवाब में कहते हैं अगर पहले से नकद और उधार की कीमत बता दी जाए कि इस सामान मसलन साइकिल की कीमत नकद 1200 रुपये है और उधार 1400 रुपये है, और फिर उसी वक्त ये तय हो जाए कि ये नकद ले रहे हैं या उधार, और उधार है तो कितनी मुद्दत के लिए, और इसमें इख्तिलाफ की कोई वजह बाकी न रह जाए तो कीमत में फर्क करना जायज है। यहाँ साइल सवाल करता है कीमती पत्थर, नगीना, मोती और मरजान का कारोबार करना शरअन गलत है या सही है? इसके जवाब में कहते हैं इन अशिया का कारोबार और खरीदो फरोख्त जायज है, क्योंकि अशिया में असल इबाहत है। मेरे इल्म के मुताबिक इनके कारोबार के सिलसिला में शरीयत इस्लामिया में मुमानियत वारिद नहीं है और इनका इस्तेमाल भी उमूमन मुबाह उमूर के लिए होता है। साइल पूछता है सिनेमा हॉल में फिल्म बीनी वगैरह के लिए किसी भी फर्द को पास या टिकट हासिल करना जरूरी होता है? ये टिकट रसीद बुक नुमा मतबू होते हैं, तो क्या जैद सिनेमा हॉल के पास या टिकट की छपाई, नंबरिंग और बाइंडिंग वगैरह करने में मेहनत करके उसे अपना जरिए माश बना सकता है या नहीं? किताबो सुन्नत की रोशनी में जवाब इनायत फरमाएं। इसके जवाब में कहते हैं सिनेमा के टिकट की छपाई, नंबरिंग और बाइंडिंग को अपने लिए जरिए माश नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें गुनाह और बेहयाई के काम में ताउन है जिससे अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ताला फरमाता है व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरे माइदा आयत नंबर 2, भलाई और तकवा के काम पर ताउन करो और गुनाह और सरकशी के काम में ताउन न करो। टीवी की तिजारत और टीवी की इस्लाह के सिलसिले में, टीवी की इस्लाह और उसे बनाने के सिलसिले में साइल ने सवाल किया है। जरिए माश के लिए टेलीविज़न बनाना, उसकी तिजारत करना या दुकान वगैरह में फरोख्त करना कैसा है? कहते हैं चूंकि हिंदुस्तान में टीवी का इस्तेमाल उमूमन सही तरीके पर नहीं होता है और इससे बकसरत बेहयाई और शर व फसाद की इशाअत और ताउन व तायीद होती है,
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو۔ اس واسطے ٹیلی ویژن کی اصلاح و مرمت اور اس کی تجارت کو ذریعہ معاش بنانا درست نہیں معلوم ہوتا ہے۔ حصول رزق کے اور بہت سے وسائل ہیں، اس لیے کسی ایسے وسیلے کو اختیار کریں جو بنا کسی شک و شبہ کے درست ہو اور جائز ہو اور اس میں کسی گناہ کے کام میں تعاون نہ پایا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت و آبرو کو محفوظ کر لیا۔ اس واسطے کم از کم اس مشتبہ عمل سے احتراز کرنا چاہیے۔ ٹی وی میکینک کی کمائی کا حکم۔ ایک شخص ریڈیو اور ٹی وی میکینک ہے، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام، اور وہ گناہ میں شریک ہوگا یا نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب عنایت کریں۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جو پروگرام نشر ہوتے ہیں ان میں کچھ پروگرام تو مفید ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں غلط، اسلامی آداب و اخلاق اور عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس کا استعمال غلط چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس واسطے اندیشہ ہے کہ ہر کس و ناکس کے ٹیلی ویژن کی مرمت کرنے میں کہیں تعاون علی الاثم والعدوان نہ ہو، جس کی ممانعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ، ظلم اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس شخص کو چاہیے کہ یہ کام چھوڑ کر حصول رزق کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے جو شبہ سے خالی ہو، تاکہ اس کا دین بالکل محفوظ رہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، متفق علیہ۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ جس نے شبہات سے اجتناب کیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور حضرت عمر کا فرمان ہے دعوا الربا والریبا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ سود اور جس میں شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو، البتہ اس نے ابھی تک جو اس عمل کے ذریعہ کمایا ہے اس کو استعمال کرنا حرام نہیں۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ لیکن آئندہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مجسموں کی خرید و فروخت کا حکم۔ اس وقت سیاحتی مقامات پر جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں گفٹ کے سامانوں میں کچھ جانوروں کے مجسمے بھی ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے، ہاتھی، خرگوش وغیرہ۔ یہ مجسمے بڑے خوبصورت اور اصل سے کافی مشابہ ہوتے ہیں۔ کیا ایسے مجسموں کا اپنی دکان میں رکھنا اور انہیں فروخت کرنا جائز ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں ایسے مجسموں کے رکھنے اور فروخت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے،
क्योंकि जानदारों की तस्वीरों को घरों वगैरह में रखने की ममानियत है। और हदीस में वारिद है कि जिस घर में तस्वीर यानी तस्वीर जानदार की होती है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 249। और जब हिंदुओं का कोई ख़ास त्यौहार आता है तो उस मौके पर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मूर्तियां बिकती हैं और वो मुख्तलिफ शक्ल में होती हैं, पकी हुई मिट्टी की या शक्कर की या और बहुत शक्लें होती हैं। और मुसलमान मर्द और औरत भी उनको टोकरी में लेकर या अपनी दुकानों में सजाकर बेचते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। तो ये भी उसी ज़िम्न में आएगा और ये काम भी नहीं करना चाहिए, ये भी हराम ही है, क्योंकि वो बुत है। कभी जानवर की शक्ल में होता है, कभी बुत की शक्ल में होता है, मुख्तलिफ अंदाज में उसकी साख्त बनी हुई होती है। तो इससे परहेज करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम लोग जुमा के खुतबों में बयान करते हैं और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं। झूठ बोलकर नफा लेने का हुक्म। किसी के मंगाने पर कोई चीज एक शहर से दूसरे शहर या गांव ले जाकर जिस कीमत से खरीदी गई है उससे जायद कीमत बताकर मुनाफे हासिल करना कैसा है? क्या मुनाफे को मेहनताने में शुमार किया जाएगा? किस जवाब में कहते हैं किसी चीज को जिस कीमत पर खरीदा है उससे जायद कीमत पर बेचना और मुनाफे हासिल करना जायज है, ख्वाह जहां खरीदा हो उसी शहर में बेचे या दूसरे शहर में। अलबत्ता खरीदारों से ये नहीं कहना चाहिए कि जितनी कीमत पर खरीदा है उतनी ही कीमत पर तुमको फरोख्त कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह कहना झूठ है जो हराम है और ऐसे ताजिरों को फाजिर कहा गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न तुज्जार हुमुल फुज्जार काला कीला या रसूल अल्लाह अवलैसा क़द अहल्लल्लाहुल बै'a क़ाला बला वलकिन्नहुम युहद्दिसून फयक्ज़िबून वयहलिफून वयअथमून। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 428 444। वक़ाल अल-अलबानी सही। ताजिर लोग फाजिर होते हैं। अर्ज किया गया अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह ने बै को हलाल नहीं किया है? फरमाया हाँ हलाल किया है, लेकिन ये लोग बातें करते हैं तो झूठ बोलते हैं और कसमें खाते हैं तो गुनहगार होते हैं। इस वास्ते ताजिरों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी रहा नफा लेना तो जायज है जो उनकी मेहनत और जद्दोजहद का एवज और समरा है। साइल सवाल करता है एक शख्स ने किसी से एक मकान 4 साल के लिए मुअक्कतन 2 लाख रुपए में बेच दिया। 4 साल बाद वो 2 लाख रुपए मुश्तरी को देता है और कहता है कि मेरा मकान वापस कर दो, तो क्या इसको बै कहेंगे? जवाब में कहते हैं सूरत मसूला में ये बै नहीं है, ये तो कर्ज है जिससे बाय ने फायदा उठाया है। और फ़िक़्ह का मारूफ कायदा है कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़ातन फहुव रिबा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 648। हर कर्ज जो नफा लाए सूद है। इस वास्ते इस किस्म के नाम नेहात और गलत बै से इज्तिनाब करना चाहिए। इंसान का अपना खून बेचने का हुक्म। क्या किसी इंसान के लिए अपना खून बेचना जायज है? हदीस में खून बेचने की ममानियत है। सही उल बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 426। इस वास्ते किसी भी इंसान के लिए अपना खून बेचना जायज नहीं है। अलबत्ता ज़रूरत के वक्त खून का अतिया देना दुरुस्त है।
बल्कि किसी की मौत का खौफ हो और उसके ग्रुप का खून कहीं ना मिल रहा हो, सिर्फ एक शख्स का खून मिल रहा हो और डॉक्टरों की राय के मुताबिक उतनी मिकदार में खून देने से उस शख्स के लिए कोई खतरा ना हो, तो अपने मुसलमान भाई की जिंदगी बचाने के लिए उस पर ऐसी सूरत में खून देना वाजिब हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।